Good morning, everyone. So today we are going to explore this topic, the school of behaviorism. We have already seen the school of structuralism, functionalism, psychoanalysis. The next behaviorism school is very important, and you will find application of this particular school, the concept of this particular school, in many of the topics of paper one also, in paper two also. For example, in learning chapter, the complete learning chapter is related to the school of behaviorism. Okay, in the same way, other chapters also, paper 2 also, you will find the application in well-being chapter, therapeutical approaches, rehab psychology, okay, sports psychology. So in everywhere you will find the application of this particular school, the concept of this particular school. Okay, now behaviorism school is also known as second force in psychology. The first force being the psychoanalysis, and the third force is humanistic psychology. Okay, but what is the root of this particular school? How this particular school emerge into a separate field? Okay, and what are the different components, what are the important names we are going to study? Okay, so like in every class we are going to first have a brief overview of this particular school, and then we will go upon the basics, okay, like the experimental part and other things also. Okay, so the school of behaviorism can be studied under two separate branch. The first one is early behaviorism, the second one is later behaviorism. Okay, the credit to emerge early behaviorism as a separate field was given to John Watson. John Watson is an important name, although there are many others also, but Watson is an important name. So Watson will come under early behaviorism. Other than this, there is a separate category, later behaviorism also. Okay, under later behaviorism, we will study about B.F. Skinner. We will study about E.C. Tolman, who has given the concept of latent learning, cognitive map. We will study about Albert Bandura, who has given the concept of social learning, observational learning. Okay, so these people we are going to study in later behaviorism. Okay, but later will come later. First of all, we need to see the root. What is the root of this particular school? Okay, so John Watson has credited a lot because he has developed a systematic methodological way to understand the concept of psychology. He has given some very important experiment, like for example, the one being very famous, Little Albert experiment. Okay, where he tried to develop that how can we condition or recondition fear into any individual. Okay, this experiment is very famous. We will study about this. Okay, so in this way he has given a lot into the field of behaviorism. Okay, we will see that what is his approach and what are his basic findings, on the basis of which this school emerged as a second force in psychology. But first of all, like in every school, we need to see that what are the early roots of this particular school. Okay, what are the different early roots which inspired John Watson develop behaviorism as a second force. Okay, so these early roots can be divided. We can divide into following categories. First of all, this is a famous quote of John Watson. Okay, if you can read this: give me a dozen healthy infant, well formed, and my own special word to bring them up in, and I will guarantee to take anyone at random and train him to be an any type of specialist. I might select a doctor, lawyer, or artist. If you see this quote carefully, then you will get an idea that he's only talking about the behavior. He's only talking about the environment. Okay, अगर आप देख पाए यहाँ पर, give me my own special word, मुझे अपने हिसाब से environment दे दो और मैं इन healthy infant को और उनको आप healthy कर दो, बीमार नहीं होनी चाहिए, हेल्दी इन्फेंट और मेरा ओन एनवायरनमेंट, और फिर मैं इनको कुछ ही बना सकता हूँ बाय मॉडिफाइंग देयर बिहेवियर. आई कैन मॉडिफाई देयर बिहेवियर, आई कैन मॉडिफाई देयर रिस्पॉन्सेस, आई कैन मेक देम प्रोफेसर, डॉक्टर, ओके, अ लॉयर, अ क्रिमिनल आल्सो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनैलिटी ट्रेट्स. उनसे फर्क ही नहीं पड़ता कि उनकी पर्सनैलिटी की ट्रेट क्या है. आप मुझे बिहेवियर दीजिए, मुझे एनवायरनमेंट दीजिए, ठीक है, मेरा खुद का एनवायरनमेंट जैसा मैं मांगता हूँ, और मुझे कुछ हेल्दी इन्फेंट दीजिए, एंड आई कैन कन्वर्ट देम टू एनी वन ऑफ देम. Okay, so this is a famous quote of John Watson, which gives you an idea that what he is talking about. Okay, now what are the early roots that how this particular school come into formation? So there are basically four early roots which we will study into this. चार early root तरीके से हम इसको बता सकते हैं. Definitely हमने पढ़ा है कि साइकोलॉजी की शुरुआत फिलोसफी से हुई थी. Philosophy is the early root of psychology. Okay, psychology began to study as a separate field quite later on. It was considered as philosophy only.
in initial phase. Okay, so many philosophers inspire John Watson also. Okay, many philosophical concepts inspire John Watson also. Okay, so we will not go into the detail of philosophical trend or philosophical people, but many people like, for example, Aristotle. Okay, there was also one famous name, Auguste Comte. Okay, he also inspired John Watson a lot. So these philosophers was majorly from Greek or France. Okay, so like Greek philosopher Aristotle inspired him. French philosopher Auguste Comte inspired him. Okay, so he has detailed a lot about the philosophical roots. Okay, for example, there are some basic concept. We'll not go into detail. For example, like there is a concept of empirism. There is a concept of pragmatism. There is a concept of positivism, and you can say one more, utilitarianism. Okay, so these are some of the concepts which inspired John Watson a lot. Okay, for example, what is the main thing about empirism? ये क्या बोलता है? It talks about that knowledge could be gained only with the help of sensory experiences. आपको knowledge मिल सकती है only with the help of experiences. This is the definition of empirical school. ठीक है, यही तो वही बात करते थे, बिहेवियरिज्म यही तो बोल रहा है कि आप एक्सपीरियंस पे फोकस करो, आप एनवायरनमेंट पे फोकस करो. ओके, इन द सेम वे प्रैग्मेटिज्म, इट टॉक्स अबाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. हम कंसेप्ट को कैसे प्रैक्टिकल अप्लाई कर सकते हैं. Okay, so in the same way, John Watson Behavioral School has also given many concepts which can be applied practical on the child. हम बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, बच्चे का बिहेवियर मॉडिफाई करके हम उसको कैसा भी बना सकते हैं. ठीक है, so this is the theory of pragmatism. In the same way, positivism also. So this is school of positivism. This concept of positivism was given by Auguste Comte. ठीक है, ये पॉजिटिव वाले क्या क्या बोलते थे, अगस्त कॉन्टे क्या बोलते थे कि वही नॉलेज वैलिड है जिसको हम साइंटिफिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, वही नॉलेज वैलिड है जिसको हम साइंटिफिक तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओनली दैट नॉलेज इज वैलिड विच कैन बी साइंटिफिकली ऑब्जर्व्ड. ओके, सो इन द सेम वे बिहेवियरिज्म स्कूल, जॉन वॉटसन ने भी ऑब्जर्वेशन पे फोकस किया. ठीक है, हम बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके, इसी वजह से हम उसको पढ़ेंगे. हम कॉन्शियसनेस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते. ठीक है, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे. ओके, अभी आपको समझ में आ जाएगा. हाँ, इन द सेम वे द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटेरिज्म, ये क्या बोलता है कि लोगों का वेलफेयर हो, वेलफेयर ऑफ द पीपल. इन द सेम वे द कंसेप्ट ऑफ बिहेवियरिज्म इज आल्सो यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. फॉर एग्जांपल, वेरियस टेक्निक ऑफ बिहेवियरिज्म इज यूज्ड इन थेरेपी. थेरेपी में यूज की जाती है. ओके, कंडीशनिंग के अलग अलग प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, अवर्जन थेरेपी. ओके, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, उनके वेलफेयर करने के लिए. इसी तरीके से कंसेप्ट ऑफ बिहेवियरिज्म आर आल्सो यूज्ड टू अंडरस्टैंड द क्रिमिनल बिहेवियर. पूरे एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से बनाने के लिए भी हम उनका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने इनको पढ़ा और यहाँ से एक उनके माइंड में आया कि हमें जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो डेटा हम इकट्ठा कर सकते हैं, हमें उससे पढ़ना चाहिए, रादर देन फोकसिंग अपॉन द कंसेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, जिसको इन्होंने रिजेक्ट किया था. ठीक है, सो दीज आर द अर्ली रूट्स, अर्ली फिलोसॉफिकल ट्रेंड which heavily inspired John Watson. This is the first one. The second one is, of course, animal psychology. Okay, so we have seen a lot theories in psychology, and we will see a lot more that how psychologists, like, they conduct experiment on animals and then they replicate on human beings. Okay, for example, Pavlov. Okay, he also conducted experiment on dog. वहां से फिर वो कंडीशनिंग वाला जो मेथड निकल के आया था. ठीक है, ओके, ये जो पेवलोव था. ओके, सो पेवलोव रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे. इन्होंने, ओके, आप थोड़ा सा इसमें भी ध्यान दीजिएगा, कभी कहीं पर आपको ये देखने को मिल जाता है कि पेवलोव बिहेवियरिस्ट थे. पेवलोव वाज नॉट अ बिहेवियरिस्ट. ओके, पेवलोव वाज अ फिजियोलॉजिस्ट. ये फिजियोलॉजिस्ट थे. पेवलोव ने इंस्पायर किया था जॉन वॉटसन को कंडीशनिंग के प्रिंसिपल को देने के लिए. पेवलोव बिहेवियरिस्ट नहीं थे, ये फिजियोलॉजिस्ट थे. यहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी. ये तो क्या कर रहे थे, ही वाज वर्किंग अपॉन टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सेलिवेशन, कि हम सलीवा क्यों निकलता है जब भी हम किसी फूड प्रोडक्ट को देखते हैं. तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि व्हाई डॉग बिगिन टू सेलिवेट जब भी फूड आता है. ओके, तो वो तो करते करते उनको समझ में आया कि जब खाना नहीं भी आता है तो अभी डॉग सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है.
ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, कभी कभी आपको लगता है ना कि आप आपकी पसंदीदा चीज की आवाज आपने सुनी, उसके बारे में सोचा, एंड यू बिगिन टू सेलिब्रेट, व्हाई इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो वो वहां से कहां से शुरुआत हुई थी, उसकी शुरुआत पेवलोव से ही हुई थी, इवान पेवलोव। Okay, so but he is not considered as a pure behaviorist. He was a physiologist. He was also given a Nobel Prize for physiology और medicine. ठीक है, लेकिन यहाँ से रूट समझ में आ गया था। ओके, ठीक है, तो उन्होंने भी क्या किया, एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया। इन द सेम वे स्किनर बॉक्स, all major experiments are conducted on animals and then they begin to replicate on human beings. In the same way, John Watson also conducted experiment to understand the emotions of animals, okay, to understand the processes or experiences of animals, and then he replicate all those concepts in human beings also. Okay, so animal psychology से भी इन्होंने काफी कुछ सीखा और उसको फिर उससे उन्होंने अपने स्कूल निकाल के दिया, बिहेवियरिज्म के अलग अलग कंसेप्ट दिए। इसी को ही जब हम ये कंपेयर करते हैं ना एनिमल ह्यूमन, इसी को ही हम कंपेरेटिव साइकोलॉजी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, तो आप ये अपने बैक ऑफ द माइंड रखना। थर्ड इज पेबोलियन कंडीशन रिफ्लेक्स, ये मैंने आपको अभी बता दिया। ओके, ओके, सो इवान पेवलोव जो थे जिन्होंने अपने कंडीशन रिफ्लेक्स दिए थे, उनका एक्सपेरिमेंट क्या था वो अभी हम देखेंगे, बट यहाँ से भी ये काफी इंस्पायर हुए थे। एंड रिमेंबर दैट पेबोलियन और इवा पेवलोव was a physiologist who inspired John Watson. Okay, और फिर उन्होंने वहां से अपने कंडीशनिंग के प्रिंसिपल देना शुरू किए। ओके, द नेक्स्ट वन इज द स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म। ओके, अब फंक्शनलिज्म का जॉन वॉटसन पे काफी इंपैक्ट आया। ठीक है, कैसे इंपैक्ट आया, फंक्शनलिज्म क्या बोलता था, फंक्शनलिज्म बोलता था कि स्टडी द कॉन्शियसनेस। अगर आपको याद होगा हमने स्ट्रक्चरलिज्म फंक्शनलिज्म दोनों पढ़ लिए। सो फंक्शनलिज्म फोकसेस अपॉन द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब जो इम्पैक्ट आया जॉन वॉटसन का वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया। देखो, आप चीजों से पॉजिटिव भी लेते हो नेगेटिव भी लेते हो, इन्होंने एक नेगेटिव इम्पैक्ट किया। उन्होंने बोला कि यार ये सब चीजें बेकार है। ओके, दैट इज नो पॉइंट टू स्टडी द कॉन्शियसनेस, व्हाई, बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड। आप अपने कॉन्शियसनेस को मेजर नहीं कर सकते, तो हम वही चीजें पढ़ेंगे जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ओके, सो फंक्शनलिज्म का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है उनके ऊपर, और वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि we will not study the concept of consciousness because it cannot be measured. Okay, तो उन्होंने सब्जेक्ट मैटर को चेंज किया और उन्होंने बोला कि हम उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से फंक्शनलिज्म से इंस्पायर हुआ है। इसके अलावा आई टोल्ड यू दैट फंक्शनलिज्म हैज आल्सो मेनी एप्लीकेशंस, फंक्शनलिज्म की काफी एप्लीकेशन भी थी। तो उस कंसेप्ट से इंस्पायर होकर जॉन वॉटसन ने भी अपने कंसेप्ट की एप्लीकेशन दी इन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस। Okay, so John Watson also inspired the applicable part of functionalism, and he also talks about that we can apply the concept of behaviorism into the field of child psychology. Okay, we can apply the concept of behaviorism in the criminal psychology, in abnormal psychology also. ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन वाला पार्ट था, अप्लाइड वाला पार्ट था, उससे भी इंस्पायर होकर, फंक्शनलिज्म से इंस्पायर होकर बिहेवियरिस्ट ने अपने अलग अलग रूट दिए। ठीक है, सो इन दिस वे दीज आर द अर्ली रूट्स, ये हमारे कुछ अर्ली रूट्स हो जाते हैं। यहाँ पर जो बिहेवियरिज्म अपनी जो बातें बताएंगे या जो अर्ली ट्रेंड्स बताएंगे उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर एक बिहेवियरिज्म की शुरुआत होती है, जॉन वॉटसन शुरुआत करते हैं इसको पढ़ने का। ओके, और इसमें अपने अपने अलग अलग कंसेप्ट देंगे। ठीक है, बताएंगे कि क्या चीजें होंगी। ओके, इवान पेवलोव का मैंने आपको बता दिया। ओके, सो देन आफ्टर दिस इन सब से इंस्पायर होकर, इन सब से नॉलेज गेन कर कर, okay, from the philosophy, from animal psychology, from Eva Pavlov and the school of functionalism, in some से inspired होकर Watson gives certain features of his school, जो वो behaviorism का स्कूल है उसके कुछ certain features देते हैं। Among those features, these 4 features are very important. The first feature, objective experimental branch. इन्होंने क्या बोला कि हमें objective experimental branch करना है। ठीक है, मतलब हम subjective नहीं रहेंगे। जो सब्जेक्टिविटी वाला प्रिंसिपल था वो इन्होंने एंड कर दिया। ठीक है, जो पहले के लोग थे वो सब्जेक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करते थे, ये ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं। ओके, तो उनका क्या है, ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटल ब्रांच है। ठीक है, तो जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो एनवायरमेंट में मौजूद है, हम उनको पढ़ेंगे और उनसे अपने प्रिंसिपल्स निकाल के देंगे। ओके, इसी तरीके से पुराने वाले लोग क्या करते थे, इंट्रोस्पेक्ट करते थे, आपके अंदर झांक के देखते थे। ठीक है, आपके अंदर क्या क्या हो रहा है। ओके, इन्होंने तो मना ही कर दिया, अंदर से मतलब ही नहीं है मुझे। Okay, irrespective of the personality trait, give me a dozen infant and I can make them anything, either a doctor or a lawyer. तो इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, there is no need to introspect any individual. Only behavior is important. Behavior को modify करो, चेंज करो, हमारा काम हो गया।
ओके, इन द सेम वे उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट को मना किया और कॉन्शियसनेस को भी मना कर दिया। ठीक है, तो इनके लिए सब्जेक्ट मैटर क्या था? इनके लिए सब्जेक्ट मैटर था सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर, कि हमें बिहेवियर को पढ़ना है। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट, हम सिर्फ बिहेवियर फोकस करेंगे और किसी चीज पे हमें फोकस करना ही नहीं है। ठीक है, ओके, सो दीज आर द सर्टेन फीचर्स, ये हमारे मेजर फीचर हो जाते हैं इस स्कूल के। इसके बाद इन मेजर फीचर्स को रखने के बाद जॉन वॉटसन इन 1913, ओके, 1913 के अराउंड जॉन वॉटसन एक बिहेवियरिज्म स्कूल अपना रखते हैं, और बिहेवियरिज्म एक डोमिनेंट ब्रांच बन जाती है उस टाइम पर, काफी फेमस हो जाती है, और इसी वजह से उसको एक सेकंड फोर्स ही बोला जाता है साइकोलॉजी के अंदर। क्योंकि पहली फोर्स क्या है हमारी? साइकोएनालिसिस, एंड इट इज कंसीडर्ड एज अ सेकंड फोर्स इन द साइकोलॉजी। उसके बाद थर्ड फोर्स ह्यूमनिस्टिक आती है। ठीक है, तो 1913 में ये एक बिहेवियरिस्ट अपनी एक अलग से स्कूल लगते हैं, और फिर बिहेवियरिज्म स्कूल को एक एज अ सिस्टम पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो भी साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को सब लोग अपने अपने हिसाब से उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, अपने अपने हिसाब से पढ़ा है। सिगमंड फ्रॉइड कुछ और बोलते थे, ऐसे ही जॉन वॉटसन कुछ और बोलेंगे। सो फॉर जॉन वॉटसन सब्जेक्ट मैटर इज डिफरेंट, फॉर सिगमंड फ्रॉइड सब्जेक्ट मैटर इज डिफरेंट, फॉर कार्ल रॉजर्स, एब्राहम मैस्लो, सब्जेक्ट मैटर वुड बी डिफरेंट। ओके, इन द सेम वे इनके भी सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट हो जाएंगे। इनका सब्जेक्ट मैटर क्या हो जाएगा? बिहेवियर हो जाएगा। ये बिहेवियर को पढ़ेंगे। ठीक है, सो आफ्टर गिविंग ऑल दीज फीचर्स इन 1913, जॉन वॉटसन ये स्कूल निकाल के लेके आते हैं इन सेंट हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, और वहां से फिर बिहेवियरिज्म को एक सेपरेट सिस्टम की तरह पढ़ना शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, ओके, अब जब हम सेपरेट सिस्टम को पढ़ेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि वो साइकोलॉजी को डिफाइन कैसे करते हैं, हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या क्या मेथड का इस्तेमाल करते हैं, हमें देखना पड़ेगा कि वो माइंड बॉडी प्रॉब्लम के बारे में क्या बोलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड बॉडी प्रॉब्लम अगर आपको याद होगा तो ये डिबेट हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ी थी। ठीक है, रेने डेस्कार्ट, आई थिंक देयरफॉर आई एम, ओके, माइंड एंड बॉडी, द मोनोइज्म, डुअलिज्म, ये कंसेप्ट हमने देखे थे। ओके, तो इन सब चीजों के बारे में ये क्या बोलते हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हम साइकोलॉजी की बात करें, अब ये क्या बोलते थे कि साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हम स्टडी करेंगे ह्यूमन बिहेवियर की। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। अब माइंड की बात तो ये कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, इन्होंने तो माइंड को हटा ही दिया, माइंड होता ही नहीं है, इन्होंने तो ऐसा बोल दिया। अभी हम पढ़ेंगे ये माइंड बॉडी प्रॉब्लम है, आपको समझ में आएगा। इनके स्कूल को माइंडलेस साइकोलॉजी बोला जाता है कभी कभी, माइंडलेस साइकोलॉजी। तो माइंड की तो बात कर ही नहीं रहे हैं, ये सिर्फ बिहेवियर की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ओनली, सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और क्लियर फॉर्म में इन्होंने क्या बोला कि आप क्या पढ़ो, आप सिर्फ एस और आर को पढ़ो, आप कुछ पढ़ो ही मत। only S and R is important. Only stimulus, S is stimulus and R is response. Only these two things are important. ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? हमें एक तो स्टिमुलस पढ़ना है और हमें एक रिस्पॉन्स के बारे में देखना है। ठीक है, दो चीजों के बारे में हमें देखना है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस इज एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। जो भी चीज एनवायरमेंट में मौजूद है वो स्टिमुलस हो गया, कुछ भी। ठीक है, ओके, अब ये जो स्टिमुलस है सिंपल भी हो सकता है, आपके पास एनवायरनमेंट में कोई एक सिंपल चीज भी हो सकती है और कुछ कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। अगर सिंपल होती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर कॉम्प्लेक्स होती है तो आप उसको ब्रेक डाउन कर दो। ठीक है, तो मान लीजिए एस अगर कॉम्प्लेक्स है, सो ब्रेक इट डाउन, S1, S2, S3, S4। ओके, सो स्टिमुलस इज नथिंग, एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, खाना रखा हुआ है, वो स्टिमुलस हो गया, उसको देखकर आपके अंदर एक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, यू बिगिन टू सेलिब्रेट। ठीक है, ओके, दिस इज स्टिमुलस, दिस इज रिस्पॉन्स। हवा का झोंका आया, आपकी आंखें ब्लिंक हो गई, दिस इज हवा का झोंका, स्टिमुलस, एंड दिस इज रिस्पॉन्स। Okay, so stimulus is anything which is present in the environment. It could be simple also, it could be complex also. अगर कुछ complex stimulus है तो आप उसको break it down करोगे, ठीक है, तोड़ दोगे और फिर उसको आप समझने की कोशिश करोगे। On the second hand, that is response। ठीक है, दूसरे हमारे क्या आते हैं? रिस्पॉन्स निकल के आते हैं। ठीक है, अब रिस्पॉन्स भी, कुछ रिस्पॉन्स लर्न हो सकते हैं, आप सीख सकते हो। कुछ ऐसे रिस्पॉन्स होते हैं जो हम सीखते हैं, कुछ ऐसे रिस्पॉन्स होते हैं जो हम सीखते नहीं हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लर्न में अगर हम बात करें, टॉकिंग हम सीखते हैं, बात करना, ये हमारे लर्न रिस्पॉन्स हो गए, टॉकिंग, वॉकिंग। ठीक है, थिंकिंग,
परसेप्शन, ये हमारे क्या है, सारे के सारे लर्न रिस्पॉन्सेस हो गए। अनलर्न रिस्पॉन्सेस, फॉर एग्जांपल आप अपनी आंखों को ब्लिंक कर रहे हैं, आई ब्लिंक भी आपका रिस्पॉन्स है लेकिन अनलर्न है। ठीक है, ब्रीथ कर रहे हैं आप, तो ये भी आपका रिस्पॉन्स है लेकिन अनलर्न है। डायरेशन, हार्ट रेट ऊपर नीचे होना, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना। ओके, सो दीज आर आवर रिस्पॉन्सेज, लर्न और अनलर्न। ठीक है, इनको भी ऑल दो हम कैटेगराइज कर सकते हैं कोवर्ट और ओवर्ट में, लेकिन वो इतना जरूरी नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ओके, क्योंकि हमको ऑलरेडी डिटेल में तो देखते ही एक्सपेरिमेंट हुआ कैसा था, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी में बताया कि आप क्या करो, आपको सिर्फ ऐसा तरीके से इसको पढ़ना है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग, जब हमने इसको एज अ सिस्टम पढ़ना शुरू कर दिया। द सेकंड वन इज मेथड, इन्होंने कुछ मेथड को अडॉप्ट किया। ठीक है, ओके, सो फॉर हिम डेटा कलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, ये मेथड इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ऐसे द डेटा विच कैन बी कलेक्टेड और विच कैन बी क्वांटिफाई, quantified data is very important to study the behavior. Quantified data is very important to study the process in psychology. Okay, so data collection is very important. Observation, हमें ऑब्जर्व करना है, तो मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्वेशन मेथड जो होते हैं वो हम रिसर्च मेथड में ही पढ़ेंगे, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वो सारे के सारे ऑब्जर्वेशन अभी हम देखेंगे। ओके, सो दीज आर द मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड वन इज कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टेक्निक, ये तो हमने कर ही लिया है, जो हमारी इवान पेवलोव ने दी थी, वो एक्सपेरिमेंट अभी हम देखेंगे, डॉग का जो एक्सपेरिमेंट था। द फोर्थ वन इज माइंड बॉडी प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये जो माइंड बॉडी प्रॉब्लम है ना, इसके बारे में इन्होंने बताया था काफी डिटेल में। ओके, अब अगर आपको याद होगा, माइंड बॉडी प्रॉब्लम के बारे में हमने एक ब्रीफ सिनेरियो लिया था इंट्रोडक्शन चैप्टर में। ओके, सो देयर वर सम पीपल हु सेड दैट माइंड एंड बॉडी आर डिफरेंट एंटिटी, there are some people who consider that they are similar entity. Okay, monoism, dualism, and among this the famous person was Rene Descartes. ठीक है, Rene Descartes has said that mind and body are two different entity and they coordinate with each other with the help of pineal gland. Okay, first of all आप इस चीज को क्लियर कर लीजिए, ये मैंने पहले भी क्लियर किया था। माइंड एंड बॉडी, माइंड क्या है, व्हाट इज माइंड? ओके, माइंड कंसिस्ट ऑफ, लाइक माइंड इज कॉन्शियसनेस, perception, your thinking, this is mind. Can we measure these things? क्या हम इनको मेजर कर सकते हैं? Can you measure your consciousness? No. ठीक है, आप उसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो माइंड क्या है, एक तरीके की नॉन फिजिकल एंटाइटी है। ठीक है, नॉन फिजिकल एंटाइटी है, आप इसको मेजर नहीं कर सकते। बॉडी के अंदर कुछ हो रहा है, ओके, आपको पता है बॉडी के अंदर कुछ हो रहा है, आपकी हार्ट रेट बढ़ गई, आप उसको मेजर कर सकते हो। ओके, आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या है। कॉन्शियसनेस कहाँ है ये नहीं पता, जैसे आपका ब्रेन हो गया। ठीक है, तो ब्रेन में आपको पता है कि ब्रेन कहाँ पर है, ठीक है, उसके अंदर जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो कहाँ पर है, सेरेब्रम कहाँ पर है, ये सब चीजें हमको पता है। बट माइंड कहाँ पर है, कॉन्शियसनेस कहाँ पर है, ये हमें पता नहीं है। तो ये डिबेट बहुत पहले से चलती आ रही है और ये डिबेट आगे भी चलती है। ओके, कुछ लोग इस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, कुछ लोग बॉडी पे ज्यादा फोकस करते हैं, बॉडी यानी कि आपकी ब्रेन पे ज्यादा फोकस करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल कंसेप्ट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी, इट फोकसेस ओनली अपॉन द ब्रेन पार्ट। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ न्यूरो साइंस दे फोकस मेजरली अपॉन द ब्रेन पार्ट। तो ये डिबेट बहुत लंबी डिबेट है, ये अभी तक आज भी चलती आ रही है। ठीक है, अब माइंड बॉडी प्रॉब्लम के बारे में जो जॉन वॉटसन थे, इन्होंने भी अपनी कुछ बातें बताई थी। ही सेड दैट कि माइंड बॉडी में इन्होंने जो माइंड का जो कंसेप्ट था, इसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। ठीक है, इन्होंने बोल दिया कि माइंड जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। ओके, वाई? माइंड के अंदर क्या क्या आ गया, कॉन्शियसनेस आ गया। अब कॉन्शियसनेस को आप मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते मेजर। अब जिस चीज को हम मेजर कर ही नहीं सकते, उनको तो हमको पढ़ना ही नहीं है। ओके, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हम माइंड पे फोकस करेंगे नहीं, हम सिर्फ बॉडी पे फोकस करेंगे, क्योंकि बॉडी से बिहेवियर निकल के आता है। ओके, सो फॉर हिम बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट। ओके, देयरफॉर फॉर द सेम थिंग, इनकी जो साइकोलॉजी है इसको हम माइंडलेस साइकोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये कंसेप्ट खत्म किया कि हम माइंड को हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ बॉडी को पढ़ना है। और इसके लिए इन्होंने कुछ एक्सप्रेशन भी दिए अपने। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ही सेड दैट, फॉर एग्जांपल लाइक ही सेड दैट वी विल नॉट फोकस अपॉन द माइंड, हम माइंड पर फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों फोकस नहीं करेंगे? ओके, फॉर एग्जांपल माइंड, माइंड मींस योर कॉन्शियसनेस, सो माइंड इक्वल्स टू कॉन्शियसनेस, आप ऐसे कह सकते हैं। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द पीपल हु कंसिडर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड, फॉर देम कॉन्शियसनेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्शियसनेस आपकी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है।
ठीक है। सो जॉन वॉटसन आर्ग्यू दैट व्हेन यू स्लीप देन व्हाट हैपेंस, तब आप कैसे देखोगे? जब आप सोते हो तब आपका कॉन्शियसनेस कहाँ पे होता है? तब तो आप अवेयर नहीं होते ना। ठीक है। ओके, आपने अभी हम पढ़ेंगे साइकिल्स क्या रहती हैं उसकी, है ना। लेकिन व्हेन वी आर स्लीप वी आर नॉट इनटू आवर कॉन्शियसनेस। ओके, एंड यू आर सेइंग दैट कॉन्शियसनेस इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। तो आप इसको कैसे समझाओगे जब हम सो रहे हैं? उस चीज को आप कैसे समझाओगे? ठीक है, तो इसका मतलब माइंड को पढ़ने नहीं है। दूसरा इन्होंने एक्सप्रेशन दिया कि माइंड क्या है? माइंड इज अ फिजिकल एंटाइटी, सॉरी माइंड इज अ नॉन फिजिकल, नॉन फिजिकल। ओके, ऑन द अदर हैंड बॉडी फिजिकल। ठीक है। ओके, माइंड नॉन फिजिकल है ना, समझ गए आप? नॉन फिजिकल इवेंट है, नॉन फिजिकल एंटाइटी है। ओके, बॉडी आपकी फिजिकल है, फिजिकल बॉडी आपकी दिख रही है, बॉडी माइंड कहाँ पर दिख रहा है? ठीक है। तो अब इन्होंने ये बताया कि हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं साइंस की तरह। ओके, अगर हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, साइकोलॉजी इज स्टडीड एज अ साइंस, देन वी आल्सो नीड टू अप्लाई और वी आल्सो नीड टू बिलीव अपॉन सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ साइंस. Now there is a principle in science. That principle is known as law of conservation of energy. According to law of conservation of energy, energy is neither created nor destroyed. It is just transferred from one entity to another entity. ठीक है, ये बात हमने पढ़ी है। ओके, अब अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक एंटाइटी से दूसरी एंटाइटी तक, और अगर आप ये कह रहे हैं कि योर माइंड एंड बॉडी both are there, both interact with each other, then energy should be transferred from one place to another place. And it is not possible that energy will transfer from a non-physical entity to a physical entity. Okay, if energy is transferring, then it must, that transfer should be from a physical to a physical source only. Okay, according to a law of conservation of energy, it can never be from non-physical to physical. Okay, ऐसा नहीं हो सकता है. So the relationship of mind and body, which was studied earlier, also rejecting the concept of law of conservation of energy. Okay, therefore he rejected the concept of mind and he focuses majorly upon the body part. ठीक है, दिस इज हिज पॉइंट ऑफ व्यू अपॉन माइंड बॉडी प्रॉब्लम. ओके, ठीक है. और इसके जो हमने जैसे इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था, द फेमस पर्सन जो इन्होंने जिसके बारे में बताया था वो थे रेने डेस्कार्ट्स. वहां से शुरू होती है ये वाली डिबेट और ये डिबेट अभी तक चलती है. रेने डेस्कार्ट, इनका एक फेमस कोट है, आई थिंक बिकॉज आई एम. ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, हमने ये पढ़ा था पहले, आई थिंक बिकॉज आई एम. ठीक है, तो आई एम यानी कि मेरी बॉडी, आई थिंक यानी कि मैं सोच रहा हूं, तो माइंड बॉडी दोनों हो गया ना. ठीक है, सो दिस वाज हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑन माइंड बॉडी प्रॉब्लम. ओके, सो डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, ऐसा रिस्पॉन्स, मेथड्स आर डेटा कलेक्शन, condition reflex we have seen, mind body problem we have seen. Other than this, he has also given some other concept also, like the concept of environmentalism and the concept of determinism. ठीक है, इनके बारे में भी इन्होंने बताया था. ओके, नाउ एनवायरमेंटलिज्म मींस ही फोकसेस मेजर अपॉन द एनवायरमेंट. ये एनवायरमेंट पे ज्यादा फोकस करते थे. तो अकॉर्डिंग टू हिम, एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो अगर आप किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर चेंज कर देते हैं तो आप उसका जो अपब्रिंगिंग है सबको चेंज कर सकते हैं. ठीक है. ओके, अब बिहेवियर में जैसे कि मान लीजिए कोई एक बच्चा है. ओके, अगर उसका एनवायरमेंट ठीक नहीं है तो उसकी अपब्रिंगिंग या उसकी पढ़ाई ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी. वहीं आप उसका एनवायरमेंट चेंज कर दो, उसकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी. दिस इज अबाउट द एनवायरमेंटलिज्म. सेम डिटर्मिनिज्म. डिटर्मिनिज्म क्या बोलता है कि वॉट एवर अवर बिहेवियर इज कमिंग, हम जो भी कर रहे हैं इट इज नॉट इन अवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है. डिटर्मिनिज्म फोकसेस अपॉन द कंसेप्ट ऑफ फ्री विल, कि हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है ना सब कुछ डिटरमाइन है. ठीक है. ओके, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एवरीथिंग इज डिटरमाइंड, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू अवर जीन्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा. ओके, सब कुछ डिटरमाइंड होता है. ठीक है, हमारे हमारा जो बिहेवियर है इट इज नॉट इन अवर कंट्रोल. ओके, पर इन्होंने इसको अपोज कर दिया, इन्होंने बोल दिया कि हम अपने बिहेवियर को खुद कंट्रोल करते हैं. तो अगर कोई क्रिमिनल बिहेवियर कर रहा है, कोई क्राइम कर रहा है, तो उसके बिहेवियर को भी कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बिहेवियर को भी कंट्रोल, उसका बिहेवियर चेंज किया जा सकता है. ओके, सो एवरीथिंग दैट इज लर्नड दैट कैन बी अनलर्न आल्सो. ठीक है, जो भी सीखा है उसको अनलर्न भी कर सकते हैं, अनलर्न को लर्न भी कर सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. ठीक है, जो इन्होंने बताया था अपने विद द हेल्प ऑफ लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट. ओके, जो इन्होंने अपनी सेकंड वाइफ के साथ में दिया था, रोजबर्ग के साथ में, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट. यहां पर इन्होंने लिटिल एल्बर्ट को कंडीशन करा दिया था फियर ऑफ रैबिट से. ठीक है,
इनको डर पैदा करा दिया था। वो अभी कैसे कराया था वो भी हम देखेंगे, और फिर बाद में उस डर को हटवा भी दिया था। ठीक है, ओके। तो काउंटर कंडीशनिंग भी करा दी थी। डर पहले पहले उसको डर लगता था, फिर बाद में उसको डर लगना बंद भी हो गया। ठीक है, और इसी कंसेप्ट को हम थेरेपी में भी यूज करते हैं। ओके, है ना। आपने देखा होगा ना, किसी को अगर फोबिया डिसऑर्डर आ गया, फोबिया, या हाइट से डर लग रहा है, या क्लोज्ड स्पेस से डर लग रहा है, क्लॉस्ट्रोफोबिया, तो वो जाते हैं थेरेपी लेने के लिए और वो डर खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होता है? ऐसे ही तो खत्म होता है, काउंटर कंडीशनिंग से, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन से। ओके, तो ये हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिए, और ये क्या है, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कूल। ठीक है, अब इनके काफी सारे प्रिंसिपल्स हम लर्निंग चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जहां से पेवलोव की शुरुआत होगी, उन्होंने क्या बताया, उसके बाद स्किनर आएंगे, बंडूरा आएंगे, कॉग्निटिव के जो हमारे टोलमैन आएंगे, इनसाइट लर्निंग आएगी, गेस्टाल्ट वाले भी आएंगे, कोहलर भी आएंगे। वो सब हम पढ़ेंगे डिटेल में कि वो क्या क्या उन्होंने अपने अप्रोचेस बताए और उनके क्या क्या कंसेप्ट थे। लेकिन शुरुआत जो अर्ली बिहेवियरिज्म की थी वो यहाँ से हुई थी। अब हमने अर्ली बिहेवियरिज्म देख लिया, अब हम थोड़ा सा लेटर बिहेवियरिज्म क्या होता है उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, लेटर बिहेवियरिज्म में कौन कौन आ जाएंगे? स्किनर, इसके अलावा बंडूरा, टोलमैन, गुथरी इज आल्सो देयर, क्लार्क हल. Okay, these are the important names in later behaviorism. Now we will see about later behaviorism. Then we will go into the conceptual knowledge कि हमारे चैप्टर में जो मेन कंसेप्ट है वो क्या क्या है। अब आपको एक ब्रॉड समझ में आ गया होगा कि क्या ये हो रहा है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है।